हैंग कर रहा है मेरा सिस्टम सर, मैं एक मिनट रीस्टार्ट कर रहा हूँ. Yes, sir. Okay, sir. Okay, no issue, sir. Okay, sir. Now start. हाँ जी, हाँ जी, आ गया सर. Okay. Okay. Mute. Now, Ansika. Now start the. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I, Anshika Nigam, along with Daksh, welcomes you all to the webinar on exploring happiness from the universal human value education perspectives. I would like to thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome you all. So before proceeding further, as we all have a traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute to Mother Goddess of Knowledge, I would like to request Abhishek Srivastav for lighting of lamp along with Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदा. Today, we have with us our speaker, Mr. Pankaj Munjal sir. Sir started his career
as an engineer after pursuing professional courses from Board of Technical Education, Institution of Engineers, and Delhi College of Engineering. Sir worked with various corporate sectors and taught engineering at affiliated colleges of GGS Indraprasth University and UP Technical University for nearly 20 years. He added one more dimension of facilitating and coaching to his life, along with teaching engineering in 2009. After attending a series of transformative workshops on universal human value education organized by UP Technical University in collaboration with IIT Kanpur 2009. While Sir was working with RB Institute of Technology, an engineering institute in Bijnor affiliated to UP Technical University as director, training and development 2015 to 17. He thought to quit regular assignments due to time binding and pursue what he loved doing, that is facilitating and coaching based on human value education. Sir got connected with CBSE as master trainer for conducting capacity development workshops on various topics for teachers using appropriate methodology and audio-visual aids. Based at Vaishali, Ghaziabad, he is empaneled with following organizations: CBSC COEs, Center of Excellence, Delhi East and West, Chandigarh, Panchkula, Bhubaneswar, and Dehradun for capacity building workshops for educators on exploring happiness, value education and its relevance, competence-based education, stress management, happy classrooms, gender sensitivity, sustainable green school, emotional intelligence, magic of gratitude, setting outcomes for teaching, learning, child physiology, life skills like effective communication, self awareness, and decision making. Delhi Police STC Training Center for police officers on gender sensitivity. So far, he has conducted over 250 offline and 250 online workshops at various platforms, including schools, colleges, and corporate offices with overwhelming and encouraging feedback. Now I would like to invite Dr. Vipin Kumar Srivastava for further proceedings of the webinar. Over to you, sir. Sir, your mic is muted. Thank you, Daksh and Ansika. I welcome to our HOD, Professor Rajesh Tripathi sir, and our director sir, Professor Vijay Singh sir. And I welcome to Pankaj sir, Pankaj Munjal sir, to now start the session. And one thing एक्चुअली जितने भी हमारी AKTU के कॉलेज हैं इसमें सभी फैकल्टीज ने बेसिक्स जो ह्यूमन वैल्यूज की क्लासेस हैं वो अटेंड किया and the value education has to be universally applicable to all human being and be true at all times and all places but जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है कि इसको जीने में कैसे लाएं क्योंकि बहुत सारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको टाइम टू टाइम जीने में लाना बहुत ही आवश्यक है and the technology is only a means to achieve what is considered valuable for a human being in effective and efficient manner and main important of is that what is valuable to me by investigating within myself and what I am and what I really want to be. To now, I request to Mr. Pankaj Manjal sir to take over the session and continue the session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. एक सेकंड सर धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत so I'm sure that I'm clearly audible to all of you
So I would request you Yes, to sir. use your laptop for better visibility of the content. Slides के थ्रू हम Yeah. बात को रखने की एक चेष्टा करेंगे. And we are going to explore happiness from value education perspective. So let me welcome all of you once again to be my co-explorer. So what do you observe in this picture? What does this image say? You have to write in the chat box. I'll be going pretty fast. It's just a 1 minute ice breaking time. I just wanted to pick your mind, your thoughts on this image. You can use chat box to drop your thoughts. What do you observe over here? What is your thought on this? We are going to explore the meaning of happiness through this image. But what comes to your mind? What is your thought? The difference between young age and old age. Old age can never be a barrier, state of mind, right? So, cut it short. This is this is what I want. Just check it out. They want to stay together. She was happy in her young time, but due to lot of energy, right? So this is nobody else but we. This is I. This is you. ठीक है ये हम सबकी इमेज है हमारी एक लाइफ की पिक्चर है ऐसा हम जीना चाहते हैं कैसा जीना चाहते हैं मैंने एक प्री सेशन सर्वे आपसे रिक्वेस्ट की थी आपने उसमें रिस्पॉन्ड भी किया टाइम की कमी की वजह से मैं उसको आई जस्ट वांटेड टू शो दैट बट आई एम जस्ट स्किपिंग दैट उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इफ गिवन ए चॉइस कि मैं चाहूँगा कि मेरे सुख की निरंतरता हमेशा बनी रहे और मेरे में समृद्धि का भाव रहे so this is our natural acceptance so what I want it does not necessarily mean physical movement this shows the happy state of mind which is being depicted over in the shadow what does it actually mean check it out when you have feeling of prosperity when you have no regrets, when you have no fears, when you have mutual fulfillment in relationships, do you feel like dancing or not? Even if you are not, there is no physical movement, but inside, within, you feel rejoiced, you feel ecstasy, you feel delight, isn't it? जब आप शिकायत मुक्त होते हैं भाव मुक्त होते हैं भय मुक्त होते हैं संबंधों में तृप्ति होती है तो हम डांसिंग मोड में होते हैं क्या ये बात सही है आपको मेरे साथ एक्सप्लोर करना है जस्ट योर को एक्सप्लोरर वी आर टू एक्सप्लोर वेदर इट इज ट्रू और नॉट है ना सो अभिषेक जी लिखते हैं यस तो मैं प्रपोजल के फॉर्म में रख रहा हूँ ये पूरा का पूरा कंटेंट एंड दिस इज व्हाट आई एम समटाइम्स इफ नॉट ऑल द टाइम I find myself unhappy I find myself stressed और विद फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन एक दरिद्रता का भाव एक अभाव की स्थिति में मैं पाता हूँ कि मेरे पास ये नहीं है औरों से बेहतर हो सकता हूँ औरों के पास मेरे से बेहतर है तो ये कहेंगे इसको फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन है ना तो कभी कभी ऐसा होता है या बहुत बार ऐसा होता है और जब भी होता है तो मैं अपने आप को इस स्थिति में पाता हूँ और ये स्थिति कभी भी आ सकती है इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज कनेक्टेड विद द एज और जेंडर और रिलीजन और प्लेस ये एक ऐसी स्थिति एक 20 साल के व्यक्ति की भी हो सकती है और एक 80 साल के बुजुर्ग की भी हो सकती है isn't it please check it out if it is right for you or not so concludingly when I am full of complaints when I am full of insecurities of any kind when I have fears whenever at any point of time जब भी मैं अभाव युक्त होता हूँ शिकायत युक्त होता हूँ भय युक्त होता हूँ तो मेरी स्थिति ऐसी होती है और साथ में इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं तो आई एम नॉट हैप्पी isn't it does it really matter how wealthy I am
how gold medals I have accumulated so far in my life. Does it really matter? है ना? तो आप अपने विचार चैट बॉक्स में ड्रॉप करते रहेंगे, ठीक है? मैं प्रपोजल रखता रहूंगा, आप उसको जांचते रहेंगे और फिर देखते हैं हम कंक्लूड करते हैं कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है जी? So this is human being. Let us explore further. What do you observe around us? तो सबसे पहले क्वेश्चन जिनकी हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज हैप्पीनेस? इज इट पॉसिबल टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस? क्या ऐसा संभव है कि हर पल हर क्षण सुखी रह जा सके, राइट? तो फिर ये भी जानना जरूरी है कि हैप्पीनेस क्या है और उसके सोर्सेस क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, ह्यूमन बीइंग इस प्लैनेट पर है, इस एग्जिस्टेंस में है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अराउंड अस? वी ऑब्जर्व whatever we observe around us, it is broadly categorized into three categories, three major words. One is material world, right? The other is pranic world order, and the third is animal order. And if you look, if you observe very carefully, you would find a harmony, coexistence, and order among these three orders. Material order को प्राणिक ऑर्डर सरवाइव कराता है, डेवलप करता है, प्रॉस्परस बनाता है, उस पे फल आते हैं, मिट्टी में खनिज लेता है, और वही पौधा मटेरियल ऑर्डर सॉइल के लिए भी फुलफिलिंग है। तो आपस में आप देख रहे हैं एक संगीत है, एक सहअस्तित्व है, एक व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह एनिमल ऑर्डर को जो फूड चाहिए, जो शेल्टर चाहिए, वो सब प्राणिक ऑर्डर से आ रहा है। एनिमल ऑर्डर जो भी डेफिकेट कर रहा है या उसकी जो डेड बॉडीज रॉटन करती हैं, वो मटेरियल ऑर्डर में मिक्स होकर उसको फर्टाइल बना रही है, वो प्लांट्स के काम आती है। तो आपस में देखेंगे एक तरह की एक बहुत खूबसूरत हार्मनी है। ह्यूमन जो है वो ज्ञान अवस्था का पार्ट है। द पॉइंट इज when there is a harmony all around among these three orders, human, despite being in jnana avastha, he is not fulfilling for all these three words. And that is why would I say that if you look at the global warming, climate change, the odd circumstances we have created over this planet, that is an indication of something wrong with the human being somewhere. We need to really find out. वो ज्ञान अवस्था की इकाई होकर भी वो इन तीनों के लिए फुलफिलिंग नहीं हो पा रहा है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के लिए फुलफिलिंग है। क्या इस बात से सहमत है आप? मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, उसके बाद भी फुलफिलिंग नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उसको ज्ञान अवस्था बोला क्यों जा रहा है? तो इसका आंसर आपके पास हो, विचार हो, तो आप चैट बॉक्स में रखें। ह्यूमन को अगर देखें तो तीन डायमेंशंस पे वो उसका जीना है। सबसे पहले परिवार, फिर समाज, फिर विश्व परिवार, और इन तीनों के बीच में डिसहार्मनी है। अगर हम परिवार के लेवल पे देखें तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, समृद्धि का भाव नहीं है। समाज में देखें तो भय है एक दूसरे से। विश्व परिवार में देखें तो वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी रहती है हमेशा। कॉपरेशन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक्चुअली व्हाट इज ही लुकिंग फॉर। उसकी मोस्ट बेसिक एस्पिरेशन क्या है, उसकी चाहना क्या है, उसकी डिजायर क्या है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ? फिर इसको समझेंगे कि वहां पे उसने डिसहार्मनी क्यों क्रिएट की हुई है, वो फुलफिलिंग क्यों नहीं हो पा रहा है नेचर के लिए। क्योंकि जब तक ह्यूमन सुखी नहीं होगा, he cannot spread happiness despite of being a part of the knowledge order। ज्ञान अवस्था की इकाई होते हुए भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि मेरा बाहर का जो कार्यक्रम है वो मेरे सुख से निर्धारित हो रहा है। अगर मैं सुखी होता हूं तो बाहर जो भी करूंगा वो स्प्रेड करेगा। I'll be a source of happiness for all. If I'm happy within, I'll be whatever I'll do, right? That will be good for all.
But if I'm unhappy, whatever I do, that will be bringing unhappiness for others too. So let us first of all see what are the sources of happiness in your life. What do you think? आपकी जिंदगी में, जीवन में सुख के सोर्स क्या हैं? इस पे चर्चा करते हैं, बताइए। लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल। आप स्लाइड्स भी देख पा रहे हैं ठीक ठीक? बताइए आपकी जिंदगी में, जीवन में सोर्सेज के हैप्पीनेस क्या हैं? लेट अस बी वेरी फ्रैंक, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज यू, ह्यूमन वन, बताइए। तो एक क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है कि उसको ज्ञान अवस्था की इकाई क्यों बोला गया है। विल टॉक अबाउट इट वेरी सून। इफ वी अचीव एनीथिंग विच वी वांट, अंकित कहते हैं कि जो हम चाहें, है ना, इसलिए क्वेश्चन भी था प्री सेशन में कि हमें लगता है कि सुख जब बाहर की चीजें प्राप्त की जाती हैं, जिस चीज की भी हम कामना करते हैं, जब वो हमें मिलती है तो सुख मिलता है। ओके, बीइंग हेल्दी, अनुज जी कहते हैं बीइंग हेल्दी, राइट। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? सो इसका मतलब वस्तुएं, उपलब्धियां, सम्मान, है ना, ये हमारे सुख के कारण है। क्योंकि जब हम कोई उपलब्धि, जैसे कि कोई हमने वस्तु खरीदी, हमें कार की इच्छा थी, एक चमचमाती कार हमारे पास आ गई, किसी पोस्ट के लिए हम एस्पायर कर रहे थे, वो हमें मिल गई, सुंदर मैं होना चाहता था, मैं सुंदर भी हो गया, कपड़े भी बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, है ना। तो ये सब, इनको हम उपलब्धियां भी कह सकते हैं, इनमें से कुछ एक, जैसे पोस्ट को। तो जब हमें ये मिलता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टरिंग एंड इक्विपमेंट, जिसको मैं भोग करता हूं इन इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, ये सब कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ नेचर, एंड देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इन द नेचर। आपने देखा मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, हमारी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो इन तीनों ऑर्डर से आ रही हैं, और ये तीनों ऑर्डर हार्मनी में है, किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट नहीं है इन तीनों के बीच में। इसका मतलब वस्तुओं की उपलब्धता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल है। कार्तिक कहते हैं कि माई पेरेंट्स हैप्पीनेस एंड माई अचीवमेंट, है ना, जब तक मेरे पेरेंट्स की खुशी, और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे की खुशी, जब तक मेरा बच्चा सुखी नहीं होगा, हम कैसे खुश हो सकते हैं? तो अभी इसको और थोड़ा सा गहराई में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सो ये जितनी भी वस्तुएं हैं, सामान है, ये सब रेस्ट ऑफ नेचर से आ रहा है, एंड इट इज ऑलवेज अवेलेबल। दैट इज व्हाई इट इज इन अबंडेंस, प्रचुरता में है। बट द पॉइंट इज, लेट अस सपोज आई अचीव समथिंग, है ना, मे बी मैं टॉप करना चाहता था यूनिवर्सिटी, मैंने टॉप कर लिया, और या मैंने कार खरीदना चाहता था, मैंने बहुत महंगी एक कार खरीदी, और कार में मैं बैठा हूँ और कहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक अचानक फोन आ जाता है, और फोन आने के बाद 2 मिनट के बाद मैं इतना स्ट्रेस में आ जाता हूँ, मैं इतना दुखी हो जाता हूँ। नाउ द पॉइंट इज कि जो कार जिसकी मैं कामना करता था, 10 लाख की मैं कार खरीदी, एक मेरे पास पोस्ट भी आ गई, या गोल्ड मेडल मैंने अभी भी जीता, व्हाटएवर, तीन स्थितियां, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, तीनों में ही जिसमें आप मर्जी अपने को मानिए, उसी समय आपके पास एक फोन आता है, और आप अभी भी कार के अंदर बैठे हैं, उसका स्पर्श आप महसूस कर पा रहे हैं, उसका एलईडी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं आंखों से, लेकिन उसके बाद भी ये दुख कैसे आया, इतना स्ट्रेस कैसे हुआ? क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कार, पोस्ट और व्हाटएवर, इफ आई अचीव समथिंग आई विल बी हैप्पी। यू गेट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट? इसका मतलब ये हुआ कि कार, अभी मेरी जो शरीर, जो त्वचा स्पर्श कर रहा हूं मैं, वो अभी भी बना हुआ है, अभी भी मैं कार के अंदर बैठा हूं। इसका मतलब ये हुआ, ये दुख किसको हुआ? शरीर तो अभी भी आराम में है। इसका मतलब शरीर तो आराम में है,
लेकिन दुखी होने वाला मैं हूं। इससे क्या हम ये अभिप्राय निकाल सकते हैं कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है? क्या हम ये देख पाते हैं? क्या हम इसको एक प्रपोजल की फॉर्म में, जो मैंने एक प्रपोजल रखा कि अभी भी मेरा शरीर आराम में है लेकिन मैं दुखी हूं, तो इसका मतलब मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तो मैं अपने आप को दो एंटिटीज का कोएग्जिस्टेंस क्या देख पाता हूं? ये एक प्रस्ताव के रूप में है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि मेरे अंदर चलने वाले विचार इंपॉर्टेंट हैं, कि उस समय मेरे विचारों में क्या चल रहा है, जो मेरे अंदर चल रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? So, HOD साहब ने लिखा कि आई कैन बी इन प्रेजेंट देन आई विल बी हैप्पी। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बीइंग इन प्रेजेंट? प्रेजेंट में तो अभी भी हम हैं। जैसे अभी फोन आने पे जो मेरे विचारों में चला, हम तो प्रेजेंट में ही हैं। अभी प्रेजेंट में घटना हुई है, अभी प्रेजेंट में फोन आया है। इसका मतलब प्रेजेंट में होना एक बात है, प्रेजेंट में क्या चल रहा होना है ये दूसरी बात है। तो हम प्रेजेंट में होना किसको बोल रहे हैं? प्रेजेंट में मेरे मन में, मेरे अंदर मेरे मन में क्या चल रहा है? विचारों में संगीत है या असंगीत है या द्वंद्व है, उससे मेरा सुख और दुख निर्धारित हो रहा है। Isn't it? तो आप ही कहेंगे कि इसका मतलब ये जो उपलब्धि है कार, ये बेकार है। ऐसा नहीं है। कार की एक सीमा है। कार का काम सुख देना नहीं है, कार का काम बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जो सुख है वो मेरे मन से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक प्रस्ताव के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे अंदर जो विचार उस समय चल रहा है, किसी समय भी चल रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा। मानो मैं ऑटो में भी जा रहा हूं लेकिन मेरे विचारों में संगीत है, तो मेरे बॉडी को डिस्कम्फर्ट तो जरूर हो सकता है उसके झटकों की वजह से, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर संगीत है विचारों में, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, थोड़ा बहुत बेआराम जरूर हो सकता है शरीर को, लेकिन वो भी अगर मैंने माइंड को अपने एक सही पॉजिटिव जो थॉट्स में हमेशा ऑक्युपाइड कर रखा है। तो जैसे आप खेलते हुए, मानो बहुत आपका मनपसंद गेम है और खेल रहे हैं और आपको चोट लग जाए, तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आप खेलने में मन इस तरीके से उसमें लिप्त है that you choose to ignore that inconvenience which is being done to your body, or that discomfort. So it totally depends upon I, the conscious entity. इसका मतलब ह्यूमन को अगर देखा जाए तो मैं और शरीर दो अलग अलग एंटिटीज हैं, रियल एंटिटीज हैं, नेचुरल एंटिटीज हैं। मेरे अंदर विचार और शरीर में संवेदनाएं हैं और बाकी की क्रियाएं हैं, सांस लेना, डाइजेशन, चलना। ये बात क्लियर हो पा रही है? हाँ। सो और आगे चलते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक? अब ये दोनों, एक और इंपॉर्टेंट जो बात है कि मैं और शरीर दोनों सहअस्तित्व में हैं, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। और वो फोन आया और उस फोन को रिसीव करके मेरा चेहरा लाल हो गया, और अगर आप उस समय देखें तो आपकी सांसों की गति बहुत तेज हो सकती है, नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है। टोटली डिपेंड्स अपॉन मेरे उस समय विचार क्या चल रहे हैं। अगर विचारों में ये चल रहा है कि इस आदमी की ऐसे हिम्मत कैसे हो गई, इसने ऐसे बोल कैसे दिया, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत एक्सट्रीमिटी पे जाके अगर ये विचार, बहुत ही डिसहार्मनी, तो मेरे सांसों की गति, मेरे ब्लड का प्रेशर जब आप देखेंगे तो उसमें आप भिन्नता पाएंगे। इसका मतलब ये है कि शरीर और मैं दोनों आपस में अस्तित्व में, एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है ना। और शरीर को मैं कंट्रोल करता हूं, शरीर मुझे कंट्रोल नहीं करता। आपका अगर
इस वर्कशॉप को आपने अटेंड किया, आपके कानों ने अटेंड किया या आपने अटेंड किया कानों के माध्यम से? कौन अटेंड कर रहा है? या आपका शरीर अटेंड कर रहा है या आप अटेंड कर रहे हैं? माध्यम हो सकता है शरीर, लेकिन अटेंड करने वाले आप हैं, आपका डिसीजन है। ठीक है। दूसरा सोर्स प्रपोजल की फॉर्म में, दैट द सेकंड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन माय लाइफ इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड रिलेशनशिप, संबंधों में तृप्ति, चाहे वो पेरेंट्स के साथ, चाहे सिबलिंग्स के साथ, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे टीचर्स के साथ, चाहे पड़ोसियों के साथ, चाहे दूसरे देशों के साथ। जब म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप्स इंश्योर होता है, राइट, तो मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। अभी म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप्स क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रपोजल की फॉर्म में ये 9 भाव हैं, जिसमें से यहाँ पे केवल 7 लिखे गए हैं। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, प्रेम। जब संबंधों में इन भावों को पहचान कर हम इनमें जीते हैं और इनके थ्रू प्रस्तुत होते हैं, इन भावों को पहचान कर इनमें जीते हैं और इनके थ्रू प्रस्तुत होते हैं, तो हमें संबंध में तृप्ति का एहसास होता है। नॉट ओनली दिस, जब हम इन भावों से युक्त होते हैं तो हमारे अंदर कल्पनाशीलता में, विचारों में संगीत महसूस होता है, क्योंकि गलत विचार ही नहीं आता। आपका एक दोस्त है, बहुत प्रिय है आपको, और जिस तरीके से भी प्रस्तुत हो, लेकिन आप दोनों सम्मान, विश्वास, आपको पूरा विश्वास है कि वो मेरा सुख चाहता है और मेरी समृद्धि चाहता है, जो हमारी एक मूल चाहना है। आपको उस पर कोई भी इंटेंशन पे डाउट नहीं है। अब वो किसी भी तरह का शब्द बोले, हो सकता है जिस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, है ना, या कोई भी, मतलब स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी जिसको भी हमने मित्र माना हुआ है, जिसको भी हमने उसकी डाउट, कोई इंटेंशन पे कोई डाउट नहीं है, तो किसी भी तरह के शब्द बोलने पर, क्योंकि भावों के प्रति हमें पूरी पूरी आश्वस्ति है, तो हम बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर हम हमारे उसके साथ ही भाव नहीं जुड़े, तो कोई हमें नाम से भी बुला ले और थोड़ी सी तेज आवाज में भी बात कर ले, है ना, तो हमें आपत्ति हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये भावों से मैं युक्त होता हूं, तो मेरे विचारों में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता, असंगीत नहीं होता, और उसका सुख मुझे मिलता है। और जब मैं प्रस्तुत होता हूं इन्हीं भावों के साथ, तो दूसरा भी इसको रिसीव करता है, और ये इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल हार्मनी रिलेशनशिप्स। ये बात क्लियर हो पा रही है? आप चैट बॉक्स में भेजते रहिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन दोनों चीजों को देखें, शरीर की जरूरत है फूड, क्लोथिंग, शेल्टरिंग, इक्विपमेंट, कार, मोबाइल फोन, राइट, जैसा हमने भी देखा कि इसका मतलब मैं भी हूं और शरीर भी है। शरीर की जरूरत ये है, ये भाव किसकी जरूरत है, शरीर की या मेरी? ये मेरी चेतन इकाई की। मैं कौन? चेतन इकाई कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। आई जस्ट वॉन्टेड टू ड्रॉ योर अटेंशन in the form of a proposal towards a reality behind these words, I, self, मन, mind। बताएं, ये बात क्लियर हो पा रही है? इसका मतलब मेरे ये जो भाव हैं, ये मेरे शरीर की नीड है, ये मेरी किडनी को चाहिए भाव, ये मेरे हाथ को चाहिए, ये मेरे पैर को चाहिए, मेरे लंग्स को चाहिए, या मुझे चाहिए, मेरी चेतन इकाई को चाहिए, मेरी सेल्फ को चाहिए। तो ये साफ साफ इसको जांचा जा सकता है। ठीक है जी। इसका मतलब हमारी 2 तरह की नीड्स हैं। जब ये दोनों तरह की नीड्स पूरी होती हैं, तो हम सुखी होते हैं। पहली नीड कौन सी? भौतिक। हमने फूड खाया, है ना, अच्छा कपड़ा पहना, गाड़ी खरीदी, तो हमें सुख मिलता है। तो वो सुख है जड़ संसार से पाया हुआ, भौतिक वस्तुओं से पाया हुआ। दूसरा सुख है इन भावों से पाया हुआ,
कि मेरे अंदर ये भाव निरंतर बने हुए हैं। पॉइंट अब ये क्या है कि लेट अस सपोज आपको कोई बहुत फेवरेट आपकी आइटम, आपकी डिश है, लेट अस सपोज आपको चाउमीन खाना, रसगुल्ला, जंक फूड, व्हाटएवर, यू फील वेरी गुड व्हाइल यू ईट दैट स्टफ, बर्गर खाना, तो इन समय सुख मिलता है। हाउ मेनी रसगुल्लास यू कैन ईट एट वन गो, बताइए। इफ यू आर वेरी हंग्री, इवन इफ यू आर वेरी हंग्री, आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं और आपकी सबसे फेवरेट आइटम रसमलाई आपके सामने आ जाए, तो कितने रसगुल्ले या कितनी रसमलाई आप खा सकते हैं, बताइए। How many you can eat at one go to keep yourself, because it gives you happiness. मंजू जी ने कहा 4, कार्तिक जी ने कहा 6, ओके 5 2, है ना। तो पॉइंट क्या है कि 6, चलो अब बताइए कि 6 के बाद अगर आपको मैं 7वां 8वां 9वां खिलाऊं, तो will that taste be still there or it will become tasteless? 8वें रसगुल्ले के बाद, जैसे आपने 4 से 6 लिखा, 8वें रसगुल्ले के बाद 9 से 9वें रसगुल्ले के बाद वो टेस्टफुल बना रहेगा या अब टेस्टलेस हो जाएगा? हार्दिक जी लिखते हैं कि इट विल बी ए प्रॉब्लम, नो, सो इट बिकम्स टेस्टलेस, एंड इफ आई request you to have more, it becomes intolerable, and it is quite probable that one starts vomiting after that. Now, the same rasgulla, which was a source of happiness, it becomes the source of unhappiness, isn't it? What do you conclude from this? That happiness from physical facility or sensation, which are from Jad Sansar, it is very much temporary. जब तक उसका टेस्ट फेवरेबल है, हैप्पीनेस मिलती रहेगी, पर उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। And the moment 8th rasgulla, it becomes the taste becomes tasteless, it becomes unfavorable, and that is the very source of unhappiness. Now, इसका मतलब ये जितना भी जड़ संसार की निरंतरता संभव नहीं है। जब निरंतर करने की कोशिश करेंगे तो ये दुख का कारण बन सकती है, बनेगी, बन कह सकती है, बनेगी। चेक कीजिएगा आप इस बात को भी। अब म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप को जब हम देखने जाते हैं, तो दूसरा हमारा सोर्स है हैप्पीनेस फ्रॉम फीलिंग फ्रॉम अदर्स, है ना। जब हमें सम्मान मिलता है, जब हमें रिकग्निशन मिलता है, जब हमें कुछ प्रशंसा में हमारी चालीसा पड़ी जाती है ना, तो हमें सुख मिलता है ना। फिजिकल फैसिलिटी भी बाहर से थी और फीलिंग्स भी बाहर से थी, बट कैन यू गारंटी द फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट from others all the time? Can you ensure the continuity of it from others? I'm talking about क्या बाहर से मिलने वाले सुख, कोई आपसे बहुत बात करता है, अचानक उसने बात करना बंद कर दिया, अब आप अपमानित महसूस करते हैं कि मैंने इसको 3 बार फोन किया, 4 बार किया, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस छोड़े, बट he or she is not responding. So what makes you, do you feel respected or disrespected? What do you feel? बताइए। इसका मतलब ये हुआ, कैन यू गारंटी द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस which we receive from feelings from others? Is there any guarantee? That's the point. It may be long term, but continuity not possible because the source is outside. And we want to continue these feelings also. जैसे हम रसगुल्ला को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पर हम इन फीलिंग्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से संभव नहीं है। और हमने एक चीज मानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड में बी बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग at the level of feelings, is it bad or good? Access का मतलब continuity, कोई आपको हमेशा सम्मान विश्वास के साथ प्रस्तुत होता रहे। Do we feel bored?
कि आप प्लीज, मैं इतने दिनों से आप मेरा फोन हमेशा उठाते हो पर अब मत उठाना 1 महीने, है ना। और मेरे साथ थोड़ा अनप्रडिक्टेबली भी मेरे साथ आप व्यवहार से प्रस्तुत हो, अमानवीय व्यवहार भी दिखाना, क्योंकि ये भाव मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, इस ममता का, इस प्रेम का, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बताएं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जितनी भी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर करने की। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जड़ संसार से मिला हुआ जो संवेदनाओं से सुख है उसमें तो वो ट्रांजिटरी है, सामयिक है। हैप्पीनेस फ्रॉम फीलिंग फ्रॉम अदर्स, it may be long term but continuity not possible. Why? Because it totally depends upon others state of mind, isn't it? तो उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं, तो फिर क्या करें। हम कंटिन्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म की तो बात ठीक है, पर हम तो कंटिन्यूटी ढूंढ रहे हैं, है ना। सो अभिषेक जी लिखते हैं, सर इज सैडनेस इज नेसेसरी अलॉन्ग विद हैप्पीनेस। अब आप बताएं, ये तो हम ही बताएंगे, आपके अंदर और मेरे अंदर, सबके अंदर सहज स्वीकृति है, नेचुरल एक्सेप्टेंस है, वी कैन रेफर टू दैट। वैल्यू एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, innate faculty we are bestowed with, we are blessed with, faculty of natural acceptance means you can ask yourself, जब आप दुखी हो सुखी होते हैं, do you ask the infinite powers whosoever you believe in, please give me some happiness in life because I'm very happy, है ना। मेरे हमेशा सब पेपर पास होते हैं, है ना, तो प्लीज इस बार फेल कर देना। मेरी गाड़ी हम कभी पंक्चर नहीं होती है, प्लीज आज के दिन पंक्चर कर देना, है ना। बताइए, सो हैप्पीनेस इज, तो इसका तो आंसर आप बेहतर बता पाएंगे। हाँ, तो नो डे नो नाइट, ठीक है, वो एक फिर जड़ संसार में होने वाली चीज है, वस्तु है। दिन है तो रात भी होगी, लेकिन जड़ संसार के नियम अलग है और चैतन्य संसार के नियम अलग है। जड़ संसार के नियमों को, इसलिए जब मैंने बात की ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट में अप्लाई in that जड़ संसार, that भौतिक संसार, but that doesn't apply in चैतन्य संसार। इसलिए हम जब उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो हमने ये मान रखा है कि जिंदगी सुख और दुख ना एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ऐसा मानते हैं ना हम, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है। अब हमारी कंडीशनिंग पूरे बचपन से ही ऐसी है कि जब आप देखा, आप याद कीजिएगा, जब आप बचपन में खेलते थे, हमने तो नालियों में नाव चलाई हुई है, जो पुरानी साइकिलों के टायर हो जाते थे, घिस जाते थे, उनसे खेला करते थे और आनंद की स्थिति, मतलब आनंद की स्थिति होती थी, परमानंद की स्थिति। लेकिन फिर हमें धीरे धीरे बताया गया कि आपके जब तक नंबर नहीं आएंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, जब तक आप फर्स्ट नहीं आओगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, जब तक आपके पास कपड़े नहीं आएंगे सुखी नहीं हो सकते, फिर गाड़ी, फिर बंगला, फिर पोस्ट, है ना। तो हमें ये बताया गया कि आप इनकम्प्लीट हैं एंड यू हैव टू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इफ यू वांट टू बी कंप्लीट, इफ यू वांट टू फील एट दैट कंप्लीटनेस इन यू। सो दिस इज ऑल माइंड कंडीशनिंग, क्योंकि हमने अपने सुख को बाहर की चीजों से जोड़ के कहीं देखा हुआ है। तो इसलिए हमने मान लिया कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो अगर हम शारीरिक तौर पे देखेंगे तो जीवन, जो सुख और दुख साथ साथ होते हैं भाई, कभी ठंडी भी होगी, कभी गर्मी भी होगी, कभी बरसात भी आएगी, है ना। तो हमने शारीरिक लेवल पे जो जड़ संसार से जो जुड़ा हुआ हमारा संपर्क है, हमें लगता है क्योंकि वो चेंज है, दैट इज चेंजिंग, दिन है तो रात भी है, तो हमें लगता है सुख और दुख बाहर की चीजों से जुड़ी हुई चीज है, बाहर से पाई गई वस्तु है। इसलिए हमने इस तरह की बहुत सारी मान्यताओं को क्रिएट किया और हमारे विचार उसी के बेसिस पर है। बात क्लियर हो रही है? टाइम कम है इसलिए बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी नो 47। तो मैं बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ।
ये जो मेरी नीड है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं मेन उस पर आ जाता हूँ। इसका मतलब ये जो अगर सम्मान जिसकी मैं बाहर से चाहना रखता हूँ, अगर इन भावों को मैं समझ के और इनमें जीना शुरू करूं, मतलब सेल्फ फुलफिलिंग, सो आई वुड नॉट डिपेंड फॉर दीज फीलिंग्स बिकॉज दीज फीलिंग्स आर माई सेल्फ नरिशमेंट। जैसे बॉडी का नरिशमेंट फूड है, मेरी सेल्फ का नरिशमेंट ये भाव है और सही विचार है। इसका मतलब ये जो भाव है, यू नो, अगर मैं दूसरे पे डिपेंडेंट ना हूं, अगर उसने सम्मान किया तो सही, नहीं किया तो कम से कम बुरा विचार नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं उसका बुरा कुछ करने की सोचूंगा, उसके प्रति न्यूट्रल बना रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे विचार मेरे सुख और दुख को निर्धारित कर रहे हैं। तो अब ये इन भावों के लिए मैं क्या करूं कि मेरे मेरे अंदर ही भाव हमेशा बने रहे। उसने कुछ कहा और मेरे अंदर कुछ बुरा भाव नहीं आया, उसके प्रति कोई जलन नहीं आई। किसी के नंबर ज्यादा है तो मेरे में जलन होने लगती है, किसके नंबर कैसे ज्यादा आ गए। अब कोई भी मैं लॉजिक दूं, ज्यादा तो मैं समझदार हूँ, ज्यादा तो इंटेलिजेंट मैं हूँ, है ना, ज्यादा तो डिजर्विंग मैं हूँ, फिर ये डायरेक्टर कैसे बन गए, ज्यादा तो मैं हूँ तो ये इनको कैसे डिग्री मिली, whatever there could be multiple things which we might be thinking a lot, not necessarily all the time, but sometimes it may come, and that actually leads to, because I start, and the moment I start comparing myself with others, isn't it, so that feeling, that lack of feeling, that jealousy comes in, creeps in, and the moment jealousy creeps in, it distorts the harmony of my thoughts. So how do I fulfill that need of self? इस भावों की जो मेरी नीड है, निरंतर जो बनी हुई है, इसकी मैं पूर्ति कैसे करता हूँ? जैसे बॉडी की जो फूड की पूर्ति है, मैं भौतिक रासायनिक वस्तुओं से करता हूँ, बताइए। शरीर की जो नीड है वो मैं भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी करता हूँ। मिल्क है, वाटर है, ये सब भौतिक रासायनिक वस्तु है, इनको बनाता हूँ। लेकिन इन भाव की पूर्ति कैसे होगी, बताइए, कहाँ से होगी? किसी केमिस्ट शॉप पे भी नहीं मिलता। कि कभी कभी मैं अपने को अपमानित महसूस करता हूँ या पुअर सेल्फ एस्टीम वो ये होती है, तो मैं केमिस्ट के पास चला जाऊँ कि भैया जरा 1000 mg का पत्ता देना, विश्वास की कमी हो रही है, बताइए। और कॉन्टिन्यूस नीड है मेरी, अनलिमिटेड नीड है, क्वालिटेटिव नीड है, बताइए। नीड ऑफ सेल्फ which is all feelings, how do I fulfill, where do I get it from, बताएं। my proposal is right understanding in my own self। समझ कहाँ पे बनेगी? शरीर में बनेगी या मेरे अंदर बनेगी? और किसके प्रति समझ? सबसे पहले मुझे खुद को समझना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस। हु एम आई? मेरी सेल्फ भी है, मेरी बॉडी भी है, बॉडी की नीड अलग है, सेल्फ की नीड अलग है, दोनों का प्रोग्राम अलग अलग है ना। और फिर पूरे एग्जिस्टेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एग्जिस्टेंस को नहीं समझा तो मुझे ये भी समझ नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता रहेगा ये एग्जिस्टेंस मेरे लिए है और मैं इसका शोषण करता रहूंगा, दोहन करता रहूंगा। और जितना दोहन शोषण करूंगा उतनी ही प्रॉब्लम मेरे लिए आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खुशी सुख तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो भावों और विचारों पे डिपेंड कर रहा है। सो द मोर आई एक्युमुलेट, the more I accumulate, which is actually not required, it will burden me, it will keep me burdened all the time, because I'm in competitive race. I need more because I assume that in order to be happy, one needs to have infinite. So right understanding in self is very important. So once I develop the right understanding, what happens? जैसे मैं भोजन देता हूँ शरीर को तो उसकी एक्टिविटी सही चलती है, इसी तरह जब मेरे अंदर सही समझ हर चीज की व्यवस्था की,
मेरे अंदर की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, संबंधों का विज्ञान समझ में आता है ना। तो मेरे अंदर विचार, इच्छा, आशा, ये हार्मोनियस तरीके से मैं इंश्योर कर सकता हूँ। And that actually leads to continuity of happiness, harmonious thoughts. And in case if I lack right understanding about everything, तो मैं गलत चीज को भी सही मानता रहूंगा। वस्तुओं, मुझे लगेगा कि जब तक ये वस्तु नहीं है तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। लेकिन सुख दुख तो मेरे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको साइकिल पे चलता हुआ व्यक्ति भी प्रसन्नचित्त नजर आ सकता है। I'm not against car. I'm not averse to buying car. But the point is, what for I'm buying a car? Do I need it? If I need it, if I need 2 cars, go for 2 cars. No issue on that. पर मैंने अगर सुख कार के साथ जोड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। अगर सुख को पोस्ट के साथ जोड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। अगर मुझे पता लग जाए सही समझ के द्वारा, सही समझ में ये पता लगेगा कि कार का एक यूसेज है, एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का। पोस्ट इसलिए है कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकूं बहुत ही एफिशिएंटली, पूरे एम्पावर्ड होके, ताकि सुंदर व्यवस्था को बनाए रखे जा सके और बेहतर बनाया जा सके। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर मैं एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि एक सुंदर और सभ्य मानव समाज को दिया जा सके। तो मैं उस काम के लिए अपनी कल्पनाशीलता को लगाऊंगा। लेकिन अगर मैंने पोस्ट को हैप्पीनेस से जोड़ लिया, तो अगर किसी ने नमस्ते नहीं की तो मेरे विचारों में क्या चलेगा, ये हम चेक कर सकते हैं। हाउ डेयर ही, he does not know who am I. अब the moment these thoughts come, my education, my happiness is at stake. It does not depend if I have a 20 lakhs car standing outside. It does not stand if I'm a gold medalist in 3rd year, or if I have a very good offer of 20 lakhs per annum package from Google. But if my thoughts are distorted, my desires are wrong, my expectations are unrealistic and impractical, unhappiness is bound to come. You can't stop it. So we need to understand that we are not prey to certain things. Birds born in a cage think flying is an illness. If you think that I cannot be happy unless and until I achieve this, that may be an illness. So a lot of illnesses we might be suffering from. So we need to know the right understanding, what understanding is all about. Fantastic planet has nurtured not one or two life forms, millions of life forms. The sheer variety of life, of animals, birds, plants, insects, and worms that we have on this planet is mind-boggling. Our ability to gobble up the resources on the planet is too much. We exploited the land, we exploited the oceans. Our idea of life has become exploitation, from an atom to anything. We are seeing how to exploit. Every creature we have killed. Everything needs to be protected. A fierce animal like tiger today needs protection because we have not found any other way, any other vehicle through which we can expand. We are naturally thinking exploiting the physical resource is the only way to expand. Right now, our very economies are built like this. It's all about more, and more. This means everybody has to buy more, everybody has to use more. But where is that damn more? We are on an exploitative mode, not by choice, by compulsiveness. The only solution for this is consciousness. When humanity begins to operate out of consciousness, compulsiveness will not rule us. When compulsiveness does not rule us, we will do just what is needed, nothing more, nothing less. We have to
come to that place. Otherwise, if they give us another 10 planets that we can live on, we will destroy all that in the next 2 centuries maybe. The only way, the only and only way, ultimate solution is that way. So living consciously means with right understanding, self-actualization. और मैस्लो की ग्राफ को हम ये समझे कि it would come later. Self-actualization, right understanding will come later. But by that time, the whole planet will vanish, will become extinct. So that is important thing to understand. So now with right understanding, we can ensure right imagination in me. I can understand the science of a relationship. But if I lack right understanding, the things can be very topsy-turvy. So what kind of lack of right understanding? Sensual gratification brings happiness and content. Please check it out if it is true or not. Because the more I tend to nurture, to believe these myths, these assumptions, the more disharmony I'm going to invite in my life. Controlling people is success because I'm very special. I had been so special since beginning. Maybe this is my mind conditioning right from the very beginning. So once I keep believing it without verifying, that needs are unlimited. Check it out. हमारी नीड्स कितनी लिमिटेड थी? 4 रसगुल्ले, 5 रसगुल्ले, तो नीड लिमिटेड हुई, अनलिमिटेड हुई? कितने कपड़े लिमिटेड हुए, अनलिमिटेड हुए? हमारी फीलिंग्स अनलिमिटेड हो सकती है ना? तो हम अपने आप को, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है, इसलिए हम अपने आप को रिसोर्स बोलते हैं. ह्यूमन इज अ रिसोर्स. ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. वी आर नॉट एनिमल्स. आर वी? Don't we share our food with the needy ones? Have you seen 2 dogs sharing their food ever? No, they don't. Because there, survival as the fittest is the rule. But here, if we import that rule to human world, simply because of lack of right understanding, we create havoc on this planet. We created interperson conflicts. So we try to control people, we try to control resources, and we think it is success. This is what I actually meant by it. Might be illness. I'm special. Needs are unlimited. Human is a social animal. Success is money. Life is a competition. Success is through money. Post and that ये भी हम ऐड कर देते हैं by hook or by crook. What does it lead to? We wanted to live with trust, respect, affection, care, guidance, gratitude, but it fills up all these emotions. Rather, these feelings, these are corroded, are eroded, and it replaces trust की जगह mistrust, lack of trust, respect की जगह disrespect, affection की जगह ईर्ष्या. जब तक कंपटीशन नहीं था, नोट शेयर करते थे दोस्तों के साथ. जैसे कंपटीशन हुआ, नोट शेयर करने बंद कर दिए, है ना? So already we were happy. We were made unhappy by making us believe that unless and until you have this, you can't be happy. So that's our pure mind conditioning. So we need to really get into our own self to get rid of all the Ravans in the form of beliefs. Last 2 minutes. राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है. राम ही है एकता में, प्रगति में राम है. राम बस भक्तों नहीं, शत्रु की भी चिंतन में है. देख सज के पाप रावण, राम तेरे मन में है. राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है. राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है. राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है.
मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। तो मन से रावण को जो निकाले का मतलब we need to get rid of all the beliefs, wrong beliefs which have been dumped into us, because Ram already हमारे अंदर है in the form of natural acceptance. तो कितना सारा हमारे पास देखिए आर्ट मटेरियल है जो इंगित करता है ना, कि हमारे अंदर सब कुछ है. So with that, if we now with this understanding, if we now accomplish something, it will be fruitful for all. Sarv Shubh. And I will not be misutilizing or underutilizing these resources if I acquire. So 15 से 20 साल के एजुकेशन में हार्मोनियस से डिसहार्मोनियस थॉट्स की तरफ हमारा जो गमन है, it needs to be looked into, so that I'll cut it short. I'm just skipping a slide. So that is what I wanted to draw your attention towards finally. So you can see the picture, and it's a self-explanatory image. The first, which is glued to this sensation. When we think that we cannot be happy unless and until I acquire this. I'm not saying that we should acquire it, but clarity of mind. What do I need it for? Because Earth is already overloaded. It can meet our needs but not greed, because there are 7 billion people living on this planet. So unverified beliefs and assumptions, they are also source of unhappiness. That too, that is Patantrata. But with the right understanding of the resolved state of mind, I become Swatantra. And that is what is the purpose of my life. To develop the right understanding so that I can be resolved at any point of time with the right thoughts, right desires, right expectations from others based on their competencies. Thank you so much. मैंने कोशिश की है टाइम को बिल्कुल. थैंक यू सर. क्वेश्चंस हैं किसी के तो अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं. Check it out. Now I would like to request Ankit, Anuj and Ishita for the question answer session. बताएं. एक घंटे में जो मैं बात रख पाया मिनिमम टाइम में, आई डिड दैट. तो सर क्या ये अगर सभी के फीलिंग में ये चीजें आ जाए कि ऑल ह्यूमन बीइंग लाइक मी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से लोग निकल सकते हैं मेरे ख्याल से. बिल्कुल सही बात कि मेरे अंदर जो चीजें हो रही हैं वो सामने वाले की है, जो मेरी सोच है, जो मैं फील करता हूँ किसी परिस्थिति में, वैसे सामने वाले भी फील करता है. तो बहुत बार रिस्पॉन्स और रिएक्शन की जो प्रॉब्लम है, जो ये सारी चीजें हैं, उससे मेरे ख्याल से निकला जा सकता है. बिल्कुल सही बात है. देखिए अगर आप सेल्फ लेवल पे तो सब सेम ही है सर. सेल्फ का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम जो चाहना है, वो तो मूल सभी की एक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस. अच्छा, प्रोग्राम भी एक ही है कि जब तक पूरे अस्तित्व को खुद से लेकर अस्तित्व को नहीं समझेंगे, है ना, वो क्लैरिटी आएगी नहीं, थॉट में हार्मनी आएगी नहीं. अच्छा, पोटेंशियल भी सब में सेम है, सब में विचार करने की क्षमता है, तो दूसरा मेरे जैसा है, लेकिन हमने बॉडी के लेवल पे देखते हैं तो भिन्न पाते हैं. इसलिए हमें लगता है कि मैं बेहतर हूँ और यही इसी बात का कॉन्फ्लिक्ट है. तो इतनी क्लैरिटी हो जाए तो मुझे लगता है कि जो इट कैन ओपन द वे टुवर्ड्स ए बेटर लाइफ इन टर्म्स ऑफ हार्मोनियस इमेजिनेशन.
तो इसको डेवलप करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग जो आपने बोला, और ये जो हमारी रिलेशनशिप की फीलिंग है, ये इससे चीजें डेवलप कर सकते हैं लोग। बिल्कुल सर, पहले तो ये देखा जाए कि मैं जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं किसी किसी मान्यता के अंतर्गत कर रहा हूँ या मेरी सहज स्वीकृति है उस काम में। जैसे किसी ने, हार्दिक जी ने लिखा, इफ यू डोंट ट्राई टू इम्प्रेस। अब देखिए, हमने माना हुआ है कि इम्प्रेस करना है। अब हम जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी ये बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बात करते हैं कि इम्प्रेस करना है, एंड जैसे ये मेरे मन में ये विचार आता है ना, ये कि इम्प्रेस करना है, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर आता है नेसेसरली का। इम्प्रेस का मतलब वो दिखाना है जो मेरे नहीं है अंदर, है ना। तो इम्प्रेशन के चक्कर में मैं गलतियां कर देता हूँ। तो अगर मैं इस बात को ठीक कर लूं कि इम्प्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना है ना। तो एक्सप्रेस करने के अगर जब मेरा विचार इंप्रेशन के ना हो के एक्सप्रेस करने का रहता है, तो मेरे अंदर कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। तो उस स्थिति में मैं बेहतर तरीके से प्रस्तुत हो सकता हूँ, बहुत ही सहज तरीके से प्रस्तुत हो सकता हूँ, और मेरे चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं उस जॉब को हासिल करने के, व्हाटएवर जो भी मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अभी हमने माना हुआ है। तो हमें लगता है कि अगर ये मौका छूट गया, अब उसी में हमारे हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं, हमें एक एक मान्यता को चेक करना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो भी काम है, जो भी मेरा व्यवहार है, जो मेरा कार्य करना है, इसलिए मुझे हर को देखना पड़ेगा कि मैं अंदर उसके पीछे मेन मान्यता क्या है, किसी मान्यतावश तो नहीं कर रहा, या सही समझ से मैं काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें, अभी भी हम भी जर्नी। तो आई एम आल्सो ऑब्जर्विंग माय थॉट्स, माय इमोशंस, यस। माय तो सर ये बहुत, हाँ, बहुत बार सर देखने में ये आता है कि जैसे किसी की बात को बिना एनालाइज या ऑब्जर्व किए दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो ये कहने में आता है कि डोंट बी फुटबॉल, यानी कि जो बातें हैं उसको कंक्लूड करें, किसको किससे बातें शेयर करना है, किससे कौन सी नहीं है। क्योंकि हम इनकी बात उनको, उनकी बात उनको अगर पहुंचाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्लैसेस आते हैं। तो अगर अपने अंदर ये ले लें कि डोंट बी फुटबॉल, जिससे फुटबॉल आया तो उसको दूसरी जगह थ्रो ना कर दें, उसको चेक कर लें कि कौन सी बात सही किसके लिए है, कौन सी नहीं सही है। बात है, बिल्कुल मेरे सही ख्याल बात। से जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसी वजह से बहुत सारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये बात क्लियर हो जाए ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, इज इट लीडिंग टुवर्ड्स दैट थिंग और नॉट, एंड इज इट हार्मोनाइजिंग माय थॉट्स और डिसहार्मोनाइजिंग माय थॉट्स। केवल इतना भी अगर ध्यान चला जाए ना, तो हमें पता लग जाएगा कि कितना टाइम हम वेस्ट करते हैं बहुत सारी सेंसेशनल ट्रिगर्स में, बहुत सारी चीजों को। पराठे खाने हम सोनीपत तक जा सकते हैं 3 घंटे के ड्राइव के बाद। तो बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं ना, तो पता लगेगा कि उसमें इतनी मीनिंगलेसनेस नजर आनी शुरू हो जाती है कि कितना कीमती जीवन है, कितना कीमती हमारा टाइम है ना। तो इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जाए, और तो धीरे धीरे जब समझ में आनी शुरू हो जाती है तो अपने आप बहुत चीजें ड्रॉप होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही महत्वता दी गई है सर। तो व्हाट इज अंकित जी थैंक यू। वन थिंग, स्पेशल थिंग और इवेंट और एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू थिंक अबाउट इट। सी, ऐसा कोई स्पेशल किसी के साथ आपने अपने को अटैच कर रखा हो तो अलग बात है। यही ना हमारा अटैचमेंट है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं या जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। ठीक है, वो ठीक है, पर because it is purely attachment, if I'm feeling good at any point of time, तो पहाड़ पे जाएंगे तब वहां पे एंजॉय कर लेंगे, जब यहाँ पे है तो यहाँ पे एंजॉय करें। तो सोचने में जनरली हमारे साथ वो चीजें जहां भावों का इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, प्योरिटी होती है, वो हमें चीजें याद रह जाती है और बहुत लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि हम उसको रिलीव करना चाहते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल जो फुलफिलमेंट है ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज वन थिंग। व्हेन वी शेयर इमोशनल स्पेसेस विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, वी कीप रिमेम्बरिंग इट एंड वी वांट टू एलोंगेट इट। हम चाहते हैं वो बना रहे हमेशा, इसलिए हम अब बना रहे। उसके लिए मुझे समझदार बनना, फिर से वही समझदारी चाहिए होगी, ताकि मैं दूसरों को और उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से प्रोग्राम बना सकूं, और उनकी कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनसे एक्सपेक्ट कर सकूं। हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं उनसे, उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है। जो कॉम्पिटेंस किससे आ रही है, वो समझ से आ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा फिर हम उनको स्पेस देने लगते हैं, और ज्यादा फिर बहुत जल्दी परेशान नहीं होते। दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड, जिस पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, विपिन जी, आपने मौका दिया। थैंक यू सर जी। अभिषेक श्रीवास्तव, नाउ
present e-memento. On behalf of Galgotia's College of Engineering and Technology, I request to Pankaj sir kindly accept the e-memento as a token of Thank you. appreciation, respect, and gratitude. Thank you, Kindly sir. accept, sir. My pleasure, sir. Altogether, it is my pleasure. Thank you so much, sir. Now, Abhishek Pandey, kindly give the vote of thanks. Hello, I, Abhishek Pandey, wishes a warm and graceful morning to our most valued Honorable Speaker, Mr. Pankaj Munjal sir, Management Committee, worthy teachers, my dear friends, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this webinar happen. The subject that enables us to understand what is valuable for human happiness is called human value education. Value education is important to help everyone in improving the value system that he she holds and put it to use. Once one has understood his her values in life, he she can examine and control the various choices he she makes in his her life. Value education enables us to understand our needs and visualize our goals correctly, and also helps to remove our confusions and contradictions and bring harmony at all levels. On behalf of our Department of Applied Sciences, I extend a really hearty vote of thanks to our speaker, Mr. Pankaj Munjal sir, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future. I want to thank Chairman Sir Shri Sunil Galgotia Sir and CEO Shri Dhruv Galgotia Sir. I express my sincere thanks to Director Brijesh Singh Sir and Head of Department Dr. Rajesh Tripathi Sir for their continuous guidance and support. My hearty thanks to organizers Dr. Bipin Srivastav sir, Miss Pratiksha Bhatia ma'am, Dr. Anuradha Shah ma'am, Dr. Indu Tyagi ma'am, Dr. Manju Kashyap ma'am, and Dr. Rajesh Tripathi sir. I want to thank all the participants present here and make this webinar a great success. My sincere thanks to all the volunteers, Anshika Nigam, Ishita Singh, Kartike, Ankit, Arpita, Divyanshu, Vaishnavi, Hamad, Ayushi, Karan, Anuj, Anjali, and Abhishek Srivastav. Thank you, sir. Thank you. And Now I request dear all, everyone to please yes, fill the feedback form. The link is provided in the chat box. yes, both link after post Post session session and link is also provided. as well as feedback form also. Thank you. Thank you, sir. Thank you Namaskar. And everyone for joining us. and at last, there is a request to open all of you your camera for a screenshot. It's done, Abhishek. Thank you, sir. Thank Kindly you. fill the feedback form and other survey post session survey form, and then leave the session. And officially, the session is closed. Thank you. Thanks to all. May I leave, sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, yes. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार सभी को नमस्कार. लिखना पड़ेगा नाम क्या आ गया? हाँ अपना स्कूल का नाम लिख तो लिख
fill the uh, feedback form and post session survey form also.